ادھر دیکھ, یہاں دیکھ, یہاں دیکھ, یہاں دیکھ. فراز بھائی آ گئے ہیں یار, تجھ سے دیکھنے ملنے ملاقات ہو نہیں سکی تھی. ہاں بھائی, ابھی اللہ کا شکر ہے. ہاں جی جی کہاں گردن گھومتی ہے؟ جی چلو صحیح ہے, جی جی بھائی. گاڑی میں بات کرتے ہیں, گاڑی میں آ جائیں. ہاں بھائی, ہسپتال میں کیا ہوا؟ سجاد بھائی آج گیا چیک اپ کرنے, ہاں جی. تو 2 ہفتے کا اور کورس دے دیا, ہاں لیکن بولا مطلب میں نے بولا یار ڈیوٹی جوائن کرنی ہے یہ ہو, ہاں ہاں. بولے آپ چلے جاؤ لیکن احتیاط کے ساتھ سمجھو کرو, زیادہ ٹھنڈ وغیرہ. کیسی احتیاط؟ میں نے یہی بولا ہمارے پاس احتیاط کا ہے. کیسی احتیاط؟ بھائی ایک اماں تھی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ, وہ ایک دفعہ گئی میرے سامنے سے, دوسرے دفعہ واپس آئی, میں اور سسٹر ساتھ تھے. بولی ہے کامران بلوچ, وہ کیا والے؟ میں نے بولا جی اماں کامران بلوچ ہے. بہت دعائیں دی سجاد بھائی, اس نے یقین کریں اماں کا نام میں بھول گیا. میں نے بولا اماں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کا نام لے لوں گا میں. بولا سجاد بھائی کو سلام دینا لازم. وعلیکم السلام. نہیں تو وہ کیا ہسپتال میں ملاقات ہوئی؟ جی جی اسپتال میں بھائی. نہیں تو کیا منع کر رہی تھی شوٹ پہ جانے سے؟ جی بولے تھوڑا مطلب اپنی طبیعت کا بھی خیال کرو. میں نے کہا اماں صحیح ہے ابھی اللہ کا شکر ہے. چلو دعائیں دی نا. جی جی بھائی. یار بڑا درد برداشت کیا ہے بھائی اس نے. جو لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو دیکھا, جو گھر پر آپ کو دیکھا نا, وہ دیکھ کر تو ہم دونوں ڈر گئے تھے کہ یار اتنی آئی سوج گئی ہے, اتنا زیادہ پرابلم ہو گیا. آپ جاندار آدمی, چھوٹی موٹی چیزیں تو آپ کو ویسے اثر نہیں کرتی. آپ کو جیسے کوئی ملا وہاں پر, جی اتفاق یہ ہے کہ میں بھی ابھی ایک جگہ سے آ رہا تھا, مجھے وہاں پر کچھ لوگ ملے اور انہوں نے پہچاننے کے بعد آپ کے بارے میں بات کی کہ کیسی طبیعت ہے. ابھی ہم نے دیکھا کان بھائی کی طبیعت خراب تھی, آپ لوگ گئے تھے, میں نے بتایا طبیعت کافی خراب ہے اور یہ کہ امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی دعاؤں کے ڈمبار لگے ہوئے مجھے آپ کے لیے. مجھے بھی فون آیا ابھی اسپیشلی, اور فون اٹھاتے ہی نا وہ کیا دکھا دیا, کیا ہو گیا ایکس رے میں, اس کی گردن ٹھیک ہے, کیونککہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ گردن پکڑی جاتی ہے. جی اللہ معاف کرے. ابھی یقین کرو میں اور شراز بھائی نا, شراز بھائی پوچھ رہے تھے مجھ سے, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ طاقتور آدمی ہے, اس کو تو ہو ہی نہیں سکتا کچھ بھی نا. یقین کر مجھے کہہ رہے تھے یار کیا ہوا ہے اس کو, ہو کیسے گیا, تو اصل ریزن کیا ہے, کس لوکیشن سے اس کو پکڑا گیا. لاسٹ والی یہ ہے کہ 3-4 اتنی خطرناک گئی ہے, میرے 3-4 پہ شک ہے یار, کسی اور سے سلسلے چل رہے تھے, یہاں زیادہ پکڑا گیا. اب پتہ ہے کیا, کوئی وجہ ہو نا, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو, کوئی آپ نے ویٹ اٹھا لیا ہو, ایکسرسائز کر لی ہو, کوئی سونے اٹھنے میں ایسا کچھ ہو گیا ہو, ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ بھی نہیں تھا, تو اتنا سیویئر شولڈر سے اب وہ گردن پہ چلی گئی بات. لیکن کرم ہو گیا جی, لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا, ان کو حوالے کیا تھا اور آپ کے سامنے جی. تو اس کا انعام یہ ہے کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں کیسی جگہ پہ. نہیں جی مذاق کر رہے تھے, آج ان کو شوٹ پر نہیں لے کے جا رہے, آج ان کو ریسٹ دے رہے ہیں. اور آج یہ کہتے ہیں نا وہ کنگز ڈے, تو آج کنگز ڈے ہے ان کا. چائے پلانے لائے ہیں آپ کو. اچھا, بہت لوگوں نے دعائیں کی, لوگ پریشان ہوئے, دل سے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے محسوس کیا. تقریباً 1000 کمنٹس ہو چکے ہوں گے اب تک, اور کالز آئی ہیں مجھے پرسنلی آئی ہیں, سب کو آئی ہیں, کیونکہ ایک وقت میں نا میں یہ بھی پریشان ہو گئے تھے. یہ اپنی والدہ میں لگے ہوئے تھے کہ بھائی میں ان کو سنبھالوں, لیکن بار بار مجھ سے کہ یار سجاد اس کا کیا حال ہے, یہ کیا ہو گیا ہے. کیوں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کھڑا ہوا بندہ بالکل ایسے نارمل موبائل پکڑ کے کھڑا ہوا, اچانک وہ اکڑ جائے. ہمیں لگا یہاں پٹھا وٹھا کچھ ہو گیا ہوگا, سردیاں ہیں شاید, لیکن وہ جب ایکس رے ہوا ہے تو یہ تو اللہ نے دوسری زندگی دے دی ہے جی. اور حالانکہ ہم پہلے ان کو ایک ہسپتال لے کے گئے اجرک ہم لوگ, پھر یہ خود گئے ہیں 2-3 ہسپتالوں میں, پھر ہم دوبارہ گئے ہیں ان سے ملنے, ایک بار گھر پہ گئے ہیں ان سے ملنے, پھر کزن کے گھر پہ گئے ہیں, کیونکہ ان کی حالت آپ کے سامنے تھی. آنکھیں ان کی الگ ڈرا رہی تھیں ہمیں, آنکھیں لال ہو گئی تھیں, اور سب ہم سے پوچھ رہے ہیں ہوا کیا ہے, ہوا کیا. اب ہم کیا بتائیں کیا ہوا ہے, کیونکہ ہوا ہی کچھ نہیں. اگر دیکھا جائے, اگر ہونا تھا تو پھر میرے ساتھ ہونا تھا, گھسیٹتے ہوئے وہ سارا. کان بھائی تو اندر آئے نہیں تھے. وہ کیا کہتے ہیں جی, وزن آ گیا جی. اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کون سا وزن ہے یہ, بالکل آپ کے سامنے ہے سب, آپ لوگوں نے بھی سب دیکھا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے وزن اٹھایا, ان کے اوپر بہت سارا وزن آیا ہے یہاں پر. اللہ معاف کرے, یہ تو ثابت ہوا نا. یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے سجاد
क्या हुआ है? मैंने कहा असरात ही महसूस हो रहे हैं। वालदा की तबीयत चली तो उनको इंजेक्शन लग रहे हैं, इसने मुझे उसमें वीडियो में देखा 29 इंजेक्शन लगे हैं 3 दिन में। मेरी तो हालत बुरी हो गई कि वो किस तरह से नीडल्स आती हैं, चीज़ें जाती हैं, और इसके बाद बता रहा था कहीं पे भी जगह ना हो। अब बताओ भाई, आप बताओ, तकरीबन हफ्ता, पूरा हफ्ता मेरे ख्याल से, हाँ हफ्ता हो गया पूरा हफ्ता। तो आपको क्या याद है कि वो जो हुआ, उसके बाद अजरक अस्पताल गए, दवाइयाँ मैंने खुद खिलाई आपको, हाँ गोलियाँ खाई आपने, आपको हमने घर पहुँचाया, पट्टी हुई थी, पट्टी यहाँ पे पूरी गर्म पट्टी इनकी हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सज्जद भाई आप लोग छोड़ के गए मेरे को, ये समझो जैसे मछली को समंदर से निकालते हैं ना, ऐसे तड़पाऊं। और रात के 3 बजे तक मैंने बर्दाश्त किया है, रात को 3 बजे तक बर्दाश्त किया। 3 बजे मैंने कज़न को उठाया, मैंने बोला मेरे को लेके जाओ। नहीं, महसूस क्या हुआ आपको? वो तो हम सबको अंदाज़ा है, लेकिन जिस पे गुजरती है ना वो बेहतर जानता है। बिल्कुल। क्या लगा आपको कि यार ऐसा क्या हुआ? आप वो कह रहे क्या बोल, क्या हुआ है, क्या है? तो कुछ घुस गया अंदर, कुछ गरम घुस गया अंदर, क्या? सज्जद भाई जैसे आग लगी हुई है यहाँ से, सर्दियों में यहाँ से लेके ये इतना तलक, बस इतने तलक, ऊपर से यहाँ से समझो ये है ही नहीं। मैंने नहीं सुनी ऐसी तबीयत किसी की ख़राब ना, कि रग खुल गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो। और एक्सरे किया, डॉक्टर परेशान है, बोला यार मतलब नस दब जाती है तो अलग बात है, मोरा खुल गए, मोरा खुल के नस के ऊपर मतलब उस पर टच हो रहा है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। ये जो जी आज आपसे बात करने का मकसद है ना, वो ये कि माशाल्लाह कई डॉक्टर्स भी देखते हैं जी दुनिया में, तो आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात। अब जब समझ नहीं आता तो उसको फिर हम पैरानॉर्मली कंसीडर करते हैं। बिल्कुल, जिस बात का जवाब ना हो या कोई आपके पास कोई दलील ना हो तो उसको फिर पैरानॉर्मली कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हमारी तो आंखों के सामने था सब कुछ। बिल्कुल ऐसे ही, हम गवाह हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मामला इस कदर बढ़ गया कि पूरा हफ्ता, मैं तो यहाँ तक कह रहा था कि लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। सज्जाद, बात वो चीख की भी है, वो जो चीख थी ना, जब वो मेरे कानों में गई है ना, तो ये रगे ना मेरे ना 2 घंटे तक ऐसे ऐसे किए। आप शिराज में लोगों ने पता है मुझे क्या मैसेज किया है? कहते हैं हमने मोबाइल फेंक दिए अपने, टूटे हैं कुछ के, इसलिए मैंने लिखवाया था इसके ऊपर। मैंने आप इनसे पूछे, मैंने इस वीडियो पे लिखवाया था कि आप वो शुरू में डिस्क्लेमर दे दीजिएगा, कमजोर दिल अफराद ना देखें। साथ आ जाओ, बस साथ रहो। और पता है मुझे क्या चीज़ रोक रही है? मैंने कभी इस तरह के जाले नहीं देखे। अच्छा भाई कमरान, क्योंकि हमारी चीखें निकल गई। अरे भाई वो जो चीख थी, लाइफ में ऐसी चीख हमने कभी सुनी नहीं, फिल्मों में भी नहीं सुनी अगर देखा जाए तो। मैं तो दिल हिल गया था उस चीख को सुन के। हालांकि और वो आपने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आप वॉल्यूम कम कीजिएगा, इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था ख्याल रख के कीजिएगा, लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया। 4-5 दिन में मेरे 3-4 दफ़ा मुझे लगानी पड़ी, मैंने भी सुनी ना, तो वो जो मेरा हाल हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए था। हम कहाँ गए अंदर? हम नहीं गए उन कमरों के अंदर, हम नहीं गए, हमें अंदाज़ा हो गया था। और मैं तो सिर्फ उस जाले को दिखाने गया था कि ऐसा दूर से लग रहा था कोई मार्कर से या पेन से किया हुआ है, लेकिन वो मकड़ी के जाले थे जी, जिससे क्रॉस बना हुआ था। पहली बार देखा, पहली दफ़ा इतनी बड़ी निशानी, और प्रॉपर बने हुए थे, प्रॉपर बने। गैर सज्जत गैर मरी मखलूक़ात की जो लाखों जगहों पे ऐसी चीज़ें मिली हैं हमें, अनहोनी चीज़ें जो इंसान सोच ही नहीं सकता। भाई वो दरख्त का टूट के रास्ते में गिरना, फिर हमें ऐसा लगना कि पहले वाले कमरे में गए, वहाँ ऐसा लग रहा था कोई किसी को हैंटर से हिट कर रहा है, कोई इसको वहाँ चीखना। अच्छा लगता पता है क्या है, लोगों ने भी कहा कि यहाँ ना कुछ नुकसान हुआ है बड़ा, बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, कुछ नाहक हुआ है। एक ख्याल तो हमें लगता है जी, दरख्तों को तो वो खुद कह रहे थे कि जी काटा था। इन मालिकान ने नहीं, इनसे पहले के जो मालिकान थे ना उन्होंने, तो उनको भी अंदाज़ा नहीं था। लगता है ऐसे है कि जी शायद किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ। लेकिन रहते तो हैं दरख्तों में, बिल्कुल ऐसे ही। और वो खुद कह रहे थे कि दरख्त काटने के बाद से ना ये मसले हुए हैं यहाँ पर। और इस कदर वो तो भाई सुनने को ही तैयार नहीं।
कोई पढ़ भी रहा था वहाँ पर, मैं गुस्सा हो गया था यार। यहाँ आके आवाजें आ रही थी, शरारत में नजर कोई नहीं आ रहा था। मैंने खुद मना किया है, भाई ने मतलब जैसे गुस्सा किया, मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो। अच्छा वो पढ़ाई ना रूह को हिट कर रही थी, जी ऐसा लग रहा है अंदर उतर रही थी, तकलीफ दे रही थी। अच्छा हुआ क्या है, पिछले हफ्ते जी हम गुज्जो में गए, वहाँ इनके ऊपर वो मंत्रों का मामला रहा है, इन्होंने बेचारे टोपी फेंकी, अभी उससे इनका हादसा हो गया, एक्सीडेंट हाथ का खतरनाक, उसी रात उस पटरियों के ऊपर, उससे निकले हैं तो इनकी ये गर्दन का मामला हो गया। लोग तो मुझे कह रहे हैं रेस्ट पे चले जाए, तो ये रेस्ट ही हो रहा है जी। मैं हालांकि इतने दिनों बाद भी ना एक ख्याल था आज रिकॉर्डिंग करनी ही करनी है। हाँ मुझे नेशनल टीवी के लिए एक काम, एक जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं गया कि हमारी तरफ से शो ना गया हो, आज तक। अब खुशी गम सबके साथ है, बिल्कुल ऐसे ही। तो डेडिकेशन ही कहेंगे इसको, एक वर्कोहॉलिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई हफ्ता ऐसा नहीं गया कि जी हमारी तरफ से शो ना पहुंचा हो, कोविड हो, हालात हो, सर्दी गर्मी खुशी गम, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक शौक़ कह लें, एक हमें एहसास होता है कि नहीं आज के दौर में आप इंतज़ार करते हैं टीवी पर देखने के लिए, फिर सोशल मीडिया पर, तो ऐसा नहीं है कि जी हमें एहसास नहीं, हम तो कुछ भी करके ना, नहीं भाई जो भी हालत, अभी भी ये ना क्या कह रहे हैं चलो, लेकिन हम ही कह रहे हैं नहीं भाई रेस्ट कर लो। वो अपना हाथ लेके कि जी चलो, ये अपनी वालदा का मामला लेके कि जी चलो, लेकिन बात ये है कि हमने कहा चलो कोशिश करके एक आध दिन और छोड़ देते हैं, फिर कर लेंगे। तो मेरे भाई लोगों ने बड़ी दुआएं की हैं आपके लिए, आपको भी महसूस हुआ है कहाँ कहाँ पे दुआएं की हैं, किन किन वास्तों को दे के, किन किन रेफरेंस के नाम लेके ना, बिल्कुल ऐसे मतलब आपके लिए दुआएं की हैं जी। तो क्या लगता है दुआओं से ही ठीक हुए मुझे लगता है? जी भाई बिल्कुल भाई। आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, अम्मा मिल गई वहाँ पे हॉस्पिटल में, उसने जो यकीन करो, मैं हालांकि चेकअप के लिए मेरे से उठना नहीं हो रहा था, हालांकि बाजी साथ थी, तो उसने जो दुआएं दी और उसने मतलब पब्लिक मतलब बैठी हुई उसके सामने सेल्फी ले रही है मेरे पास, हालांकि तकलीफ से मेरे को मतलब मैंने बोला नहीं नहीं अम्मा आ जाओ आप, बहुत दुआएं दी आपको, आसिफ भाई को, शिराज भाई को, सबको। वाह, ये दुआएं ही हैं जी, दुआएं ही हैं जो ये काम हो रहा है, करने वाला है नहीं, खुद ब खुद ही हो रहा है जी, दुआएं ही करवा, तो लोग भी मानते हैं कि दुआएं। शुक्र। तो भाई बस आपसे सुनना चाह रहे हैं लोग, अब आप कैसे हैं और कैसा फील अल्लाह कर का रहे हैं? शुक्र, अभी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल मतलब ये बड़ा दर्द बर्दाश्त किया है वैसे भाई। नहीं ये दर्द आप ही बर्दाश्त कर सकते थे, मैं ये सज्जाद इशरात में मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई बर्दाश्त करता। सही बात है, ये आप ही जैसा मजबूत आदमी फुटबॉलर वही कर सकता था, ये आप ही ने किया। मैं बोला हूँ ज़िंदगी में नहीं हुआ है भाई इतनी तकलीफ, हालांकि मैं बोला हूँ घुटने फुटबॉल में गए हैं, ये वाली अद्दी गई थी, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं, मतलब एक हफ्ता 5 दिन ख़त्म। चलो लोगों से क्या कहना चाहोगे? बस बहुत बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी जैसा भाई बोलते हैं आप हमारे ऐसा सा हो, तो आप ही हो, यकीन करो आप लोगों की दुआओं की वजह से चल रहा है, वरना कुछ भी नहीं है करने को। शुक्रिया तो कर दो सब पे, दुआएं की हैं सबने। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। वो पीछे देखो गर्दन घूमती है पूरी, पूरा घूम रहा है जी। तो जी आज किंग्स डे है भाई का, जो कहें, अब क्या करना है बताओ, ऑर्डर लगाओ। ऑर्डर लगाते हैं ना भाई, क्या लगाना है ऑर्डर? जो भी लगाए कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे? अपने वाली टीए में चलेंगे ना। अड्डे पे? हाँ यार हमें तो भूख नहीं है यार। हाँ हाँ से भाई, हाँ मेरा भी बिस्कुट हो गया अभी तो यार हाँ। हमें तो नहीं है भाई। हाँ, अभी चलेंगे, रास्ते में पता चलेगा भूख किस किस को है। हाँ जीरा को बहरहाल हमने कहा गपशप करें आपसे। बिल्कुल जी, पंजाब का लोग पूछ रहे हैं, 2 मसाइल हैं जी, मोटर पे बंद हुई है धुंध की वजह से। बिल्कुल, आज कल भी मुझे सुबह मैसेज आया, उनको लगा मैं निकल गया हूँ, मुझे मैसेज आया कि मोटर पे बंद है धुंध की वजह से। मैंने कहा टाइमिंग को 11-12 बजे खुलती है जी, उस हिसाब से कोशिश है निकलने की। तो जी जल्द आ रहे हैं इंशाल्लाह पंजाब भी। असल बात ये है सबके साथ खुशी गम है जी, तो सबको देखना है, सबको लेके चलना है। ये तो करम है कि हम सब इधर ही थे, अगर पंजाब में होते, इनकी वालदा की अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती, इसकी गर्दन का मसला हो जाता, क्योंकि हमने भुगता है ना, मैं याद है वो दोनों दफ़ा जब पंजाब का टूर हुआ, ये रिटर्न आया तो इस पर बहुत असर हुआ है। तो एक तो शेयर किया है, एक अभी रोका हुआ है। बहरहाल जी ये सब आपके सामने है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।